हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर रमेश चौहान एंड टेक्निकल पॉइंट पे। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में कक्षा 12th इंग्लिश मॉडल पेपर सेट सेकंड के बारे में बात करेंगे। आइए इस वीडियो के बारे में हम विस्तार से जानें। दोस्तों, इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है और यह पूरा प्रश्न पत्र 100 मार्क्स का होता है। दोस्तों, इस पेपर को 2 भागों में बांटा गया होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंतर्गत टेक्स्ट बुक से प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि सेक्शन बी के अंतर्गत ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत 2 पैसेज दिए जाते हैं, जिनमें से किसी एक पैसेज का रिफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए, much that was useless in ancient Indian culture has already perished. The extravagant and the barbarous hecatombs of the Vedic age have long since been forgotten. Thought, animal sacrifice and continuous in some sets and widow have long ceased to be burnt on their husband's prey, and girls may not by law be married in childhood. In buses and trains all over Indian, Brahmins rub shoulders and with the lowest caste without consciousness of grave pollution, and the temples are open to all by law. B, I assume the black cap. I condemn you to death and justice demand it, and the court awarded it. The counts against you are many. You are a vagrant. You are a public nuisance. You are traveling without ticket. You have no meat coupon for these and many other meditations, and you are about to die. I struck a swift lethal blow with my right hand. He judged the attack with an insulated edge that humiliated me. Question number second, answer any one of the following questions in not more than 30 words. दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंतर्गत 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 30 शब्दों में लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए, व्हाट डज ब्रेकिंग द रेगुलेशन ऑफ D.O.R.A मीन्स। क्वेश्चन नंबर बी, why did the teacher can Fatik unmercifully? Question number C, what kind of woman does the society need now? Question number third, fill in the blanks in the following sentences, choosing the most suitable words or phrases from the sets of words and phrases in the brackets. दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंतर्गत 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और चारों प्रश्नों के नीचे 4-4 ऑप्शन दिए होते हैं। उनमें से किसी एक सही ऑप्शन का चुनाव करके खाली स्थान पे भरना होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट, माई आर्म्स वेयर डैश 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 एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टाइड। Option number second, filled. Option number third, empty. Option number fourth, vacant. Question number second, I cannot kill you but I can dash 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 you. Option number first, punish. Second, pardon. Third, insult. Fourth, reprieve. Question number third, for a boy of 14 his own house the only dash dash dash. Option number first, shelter. Second, refuge. Third, paradise. Fourth, house. Question number fourth, much that was dash 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 in ancient Indian culture has already praised. Option number first, violent. Second, religious. Third, unique. Fourth, useless. Question number 4, answer any 2 of the following questions in about 30 words each. दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से किसी 2 प्रश्नों का उत्तर लगभग 30 शब्दों में देने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, व्हाई डिड शंकु नॉट गेट एनी स्लीप फॉर सेवरल डेज। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल his wife after dinner. Question number third, why do you like the story of the lost child? Question number 5, explain with reference to the context any one of the following text. दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत 2 स्टेंजा दिए जाते हैं, जिनमें से किसी एक स्टेंजा का रिफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into the fragments by narrow domestic wall. Question number 5 का B, the cloud puts forth its degular strength when lightning claps its breast, when the soul is stirred to its in the most depth, great ones unfold their best. Question number 6,
राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत हमारे पोएट्री से 3 चैप्टर दिए जाते हैं, जिनमें से किसी एक चैप्टर पर हमें सेंट्रल आइडिया लिखना पड़ता है। ए कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, बी द ट्रू ब्यूटी, सी द सॉन्ग ऑफ द फ्री। क्वेश्चन नंबर 7 राइट द डिफिनीशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच विथ 2 एग्जाम्पल्स। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत हमें 3 फिगर ऑफ स्पीच के नाम दिए जाते हैं, जिनमें से किसी एक फिगर ऑफ स्पीच का डिफिनीशन और 2 एग्जाम्पल लिखने होते हैं। ए मेटाफर, बी एपोस्ट्रोफे, सी ऑक्सीमोरन। क्वेश्चन नंबर 7 ए का आंसर A metaphor is an implied simile and words of comparison so as like are not used. Example number first, life is a dream. Example number second, life is but a walking shadow. Section B. Question number 8A. Change any one of the following sentences into indirect form of speech. दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8A के अंतर्गत 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होता है। फर्स्ट, द मास्टर सेड टू द लेजी सर्वेंट व्हाट आर यू डूइंग हेयर इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विवेक सेड ही मस्ट रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8B, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8B के अंतर्गत 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और उन दोनों प्रश्नों के आगे ब्रैकेट में यह बता दिया गया होता है कि किस सेंटेंस का क्या बनाना है। फर्स्ट, नीता इज वेरी पुअर, शी कैन नॉट कैरी ऑन हर स्टडीज। इसका सिंपल सेंटेंस बनाना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दैट एनिमल मे बी अ फिश, इट मे बी सरपेंट, इट मस्ट बी वन ऑफ देम। इसका कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8C, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8C के अंतर्गत 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। उन दोनों प्रश्नों के सामने ब्रैकेट में यह बता दिया गया होता है कि किस सेंटेंस का क्या बनाना है। फर्स्ट, वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज रिच एज मुंबई। इसका कंपैरेटिव सेंटेंस बनाना है। सेकेंड, हु वुड लाइक टू बी अ स्लेव। इसका असर्टिव सेंटेंस बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8 का D, करेक्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8D के अंतर्गत 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से किसी 2 प्रश्नों को सही करके लिखना होता है। फर्स्ट, हार्डली हैज राम सीन मी व्हेन ही कॉल्ड मी। सेकेंड, देयर आर नो रोज विदाउट अ थ्रोन। थर्ड, नन बट अ कवर्ड वुड फील फ्रॉम द ड्यूटीज। फोर्थ, ओबे यू टीचर्स। क्वेश्चन नंबर 8A का आंसर ए, द मास्टर आस्क्ड द लेजी सर्वेंट व्हाट ही वाज डूइंग देयर इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस। बी, विवेक सेड दैट ही मस्ट रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8D का आंसर फर्स्ट, हार्डली हैड राम सीन मी व्हेन ही कॉल्ड मी। सेकेंड, देयर इज नो रोज विदाउट अ थ्रोन। थर्ड, नन बट अ कवर्ड वुड फील फ्रॉम द ड्यूटी। फोर्थ, ओबे योर टीचर्स। क्वेश्चन नंबर 9A, use any 3 of the following items phrase in your own sentence so as to bring off their meanings clearly। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9A के अंतर्गत 5 प्रश्न दिए जाते हैं, जिनमें से किसी 3 प्रश्नों के ही उत्तर देने होते हैं। ए, अ बेड ऑफ रोज, बी, बैड ब्लड, सी, कैपिटल पनिशमेंट, डी, हैंड इन ग्लोव विथ, ई, इन्स एंड आउट्स। क्वेश्चन नंबर 9 का B, राइट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9B के सभी प्रश्नों का उत्तर देना होता है। ए, अनसिविल, बी, ऑफेंस, सी, होस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का C, राइट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9C के सभी प्रश्नों का उत्तर देना होता है। ए, फेरियस, बी, फाटल, सी, क्लेमिटी। क्वेश्चन नंबर 9D, सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9D के सभी प्रश्नों का उत्तर देना होता है। ए, द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, बी, स्पीकिंग 2 लैंग्वेजेस, सी, वन हु डज नॉट ईट मीट। क्वेश्चन नंबर 9 का E, use the following words in sentence of your own so as to bring out the difference in their meanings clearly। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9E के अंतर्गत 2 प्रश्न दिए जाते हैं और दोनों प्रश्नों के ही उत्तर देने होते हैं। ए, डज, बी, डोज। क्वेश्चन नंबर 9A का आंसर ए, दिस डेज द पोस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल इज नॉट अ बेड ऑफ रोज।
B. There has been bad blood for long between these two parties. C. The court gave him capital punishment for terrorism. D. He is hand in glove with my cousin. E. Vivek knew both ins and outs politics. Question number 9. B का answer A. Gentle. B. Defense. C. Guest. Question number 9. C का answer A. Violent. B. Deadly. C. Misery. Question number 9. D का answer A. Maiden speech. B. Linguistic. C. Vegetarian. Question number 9. E का answer A. 1 dose of this medicine is sufficient for him. B. During the duty hours he was dozing. Question number 10. Translate the following into English. दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 के अंतर्गत हमें एक हिंदी के पैराग्राफ दिए जाते हैं जिसे इंग्लिश में परिवर्तन करना होता है। पैराग्राफ हमारा इस प्रकार है। मनुष्य को ईश्वर की ओर से समय रूपी शक्ति प्राप्त हुई है। जो व्यक्ति इस शक्ति का समुचित प्रयोग करता है उसे शारीरिक और आध्यात्मिक आनंदों की प्राप्ति होती है। समय के सदुपयोग से ज्ञानी को ज्ञान, मूर्ख को बुद्धि, निर्बल को बल की प्राप्ति होती है। समय का सदुपयोग मनुष्य को देवता बना देता है। समय का उपयोग बहुमूल्य पदार्थों की भांति करनी चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा न करके व्यर्थ में समय रूपी धन को बर्बाद कर देता है, आलसी और अकर्मण्य बना रहता है, वह आत्महत्या करता है। बेकार बैठे रहने के कारण न केवल समय बर्बाद होता है वरन इसके कारण मन के विचार विकृत होते हैं। आत्मा कुलसित हो उठती है, आयु घट जाती है और आत्मानंद, शांति और संतोष की प्राप्ति न हो पाती है। प्रसिद्ध अंग्रेजी नाटककार शेक्सपियर का कथन है कि समय ही जीवन है। ठीक ही है, क्योंकि आयु तो समय से ही नापी जा सकती है। Question number 11. Write an essay on any one of the following topics in about 200 words. दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 के अंतर्गत हमें 5 एसे के नाम दिए जाते हैं जिनमें से किसी एक एसे पर लगभग हमें 200 शब्द लिखने पड़ते हैं। A. The miracles of computer. B. Your plan for future. C. Future of short democracy in India. D. Terrorism in India. E. Youth earnest. Question number 12. Read the following passage carefully and answer the questions that follow. दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 के अंतर्गत हमें एक पैसेज दिए जाते हैं और उस पैसेज से आधारित 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और उन तीनों प्रश्नों का उत्तर हमें उस पैसेज से ढूंढ कर लिखना होता है। पैसेज हमारा इस प्रकार है। इट इज़ मोस्ट टेंसिवली ट्रू दैट above all things the interest of your whole life depends on your being diligent, not what it is called today in this place where you come to get education. Diligent that includes in it all virtue that a student can have. I means it to include all those qualities of conduct that lead on to the acquirement of real instructions and improvement in such a place. If you believe me, you are young, yours is the golden season of your life as you have heard it called, so it verily is the seed time of life, in which if you not sow or if sow tears instead of wheat, you cannot reap well afterward and you will arrive at a little. Question number first, what type of seed we should sow in our lifetime? Question number second, how will you say that life depend on your being diligent? Question number third का A, give a suitable title of the given passage. B, explain the underlined portion.